বাল্যকালে যখন আমি মাখন খেতাম তখন যশোদা মায়ের আমার মাখন খাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু যখন আমি মাখন খেতাম, মাখন চুরি করতাম, তখন যেই প্রকারে বাড়ির পরিচ্ছন্নতা আমি নষ্ট করতাম তা নিয়ে অবশ্যই যশোদা মায়ের আপত্তি ছিল। আর হবে নাই বা কেন? কথায় আছে যে যদি আমাদের ঘর পরিচ্ছন্ন থাকে সেখানে লক্ষ্মী বসবাস করে থাকেন, তবেই সেই বাড়িতে সন্তোষ ভাব থাকবে। সেই জন্যই আমাদের যশোদা মা পরিশ্রম করে বাড়ির ভেতর এবং বাড়ির বাহির সবসময় পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন। এবার যেইভাবে আমাদের বাড়ি, যেখানে আমাদের পরিবার বসবাস করতেন, সেইভাবেই আমাদের শরীর আর আমাদের আত্মা রয়েছে যাতে আমরা বসবাস করি। একেও স্বচ্ছ রাখা প্রয়োজনীয়। এবার স্বচ্ছ কিভাবে রাখা যায়? শুধু বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা আর প্রসাধন দ্বারা তা সম্ভব হবে না। জীবনে কিছু কটু অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের থাকে। সেই কটু অভিজ্ঞতাগুলির কারণে আমাদের মন, আমাদের আত্মা মলিন হয়ে যায়। এই মালিন্য থেকে আমাদের আত্মাকে মুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই স্বচ্ছতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর আমাদের এই মন মালিন্য থেকে মুক্ত হতে পারে শুধুমাত্র প্রেম এবং করুণার দ্বারা। তাই সকলকে ভালোবাসতে থাকুন আর মনের মধ্যে করুণার বোধ জাগ্রত করুন। কারণ যেইভাবে বাড়ি পরিষ্কার থাকলে তাতে লক্ষ্মী বসবাস করেন, সন্তোষবোধ বজায় থাকে, সেইভাবেই যদি মন স্বচ্ছ থাকে তাহলে তাতে সন্তোষও থাকবে, শান্তিও থাকবে। তাহলে ভালোবাসতে থাকুন, মনের মধ্যে করুণাবোধ জাগ্রত করুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন, রাধা রাধা। আপনি কখনো রেশমের কীট দেখেছেন? নিজের সুরক্ষার জন্য সে নিজের লালা থেকে একটি সুতো উৎপন্ন করে আর সেই সুতো দ্বারা নিজেকে পেঁচিয়ে নেয়, প্রকৃতি এবং অন্য জীবজন্তুর হাত থেকে সুরক্ষার জন্য। কিন্তু যখন সেই সুতো শুকিয়ে যায় তখন কি হয়? তা একটা খোলসে পরিণত হয়, এত সবল হয়ে যায় যে সেই রেশমের কীট তা ভেঙে বাইরে বেরিয়েই আসতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এই কারণেই সে মৃত্যু লাভ করে। এবার যদি একটা প্রজাপতির কথা বলি, তাহলে প্রজাপতি কি করে? যখন সে উড়তে চায় সে নিজেই নিজের খোলস ভেঙে ফেলে, সে তার পাখনা মেলে আর তারপর সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। এটাই হলো শিক্ষা আমাদের জন্য। যদি আমরা আকাশে উড়ে বেড়াতে চাই তাহলে আমাদেরকেও অন্তর থেকে সেই খোলস ভাঙতে হবে, অর্থাৎ নিজেদেরকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিতে হবে। সুরক্ষার জন্য কোনো বাঁধনে জড়িয়ে পড়া এ হলো সবথেকে বেশি অসুরক্ষিত কার্য। জীবনে সুরক্ষার ভয় থাকাটা উচিত, কিন্তু তা যদি অত্যাধিক হয়ে যায় তাহলে তা আপনাকে এতটাই দুর্বল করে দেবে যে আপনি নিজেরই সুরক্ষার চক্র ভেঙে বেরোতেই পারবেন না। যদি আপনি নবনির্মাণ করতে চান তাহলে আপনাকে নিজের এই সুরক্ষা কবচ ভেঙে বেরোতেই হবে, সাহসের সাথে পরিশ্রম করতে হবে। আর যদি আপনি এটা করতে পারেন তাহলে আপনার উড়ান কেউ আটকাতে পারবে না। আসুন আমার সাথে ভালোবেসে বলুন, রাধা রাধা। বর্ষার ঋতু যখনই আসে আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসে মন ভরিয়ে তোলে। কখনো আপনি এটা ভেবে দেখেছেন যে এই বর্ষা যা আমাদের মনকে উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তোলে সে নিজে কতটা পরিশ্রম করার পরে আমাদের কাছে আসে? নদী হোক, সরোবর হোক, সমুদ্র হোক, তাকে সূর্যের তাপ সহ্য করতেই হয়। বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যেতেই হয়, আকাশে গিয়ে কঠোর শীতলতার সম্মুখীন হতেই হয়, সেই ঠান্ডা সহ্য করতেই হয়। আর তারপর এই বর্ষা আমাদের গায়ে ঝরে পড়ে, কারোর তৃষ্ণা নিবারণ করে, আবার কাউকে আশ্বাস দিয়ে যায়। সেইভাবে জীবনে যদি আমাদের কোনো বড় কাজ করতে হয় তাহলে আমাদের কঠোর এবং নিরন্তর পরিশ্রম করতেই হবে। আর যে ব্যক্তি এই পরিশ্রম করার পরেও কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাবার পরেও বিনম্র থাকেন, সেই ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করেন। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে সমগ্র সংসার ভালোবাসেন।
তাহলে সব সময় মনের মধ্যে বিনম্র ভাব বজায় রাখুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন, রাধা রাধা। আজ আমি আপনাকে একটা ছোট্ট কাহিনী শোনাবো। একবার আমি, রাধা আর দাদা আমরা তিনজনে মিলে লুকিয়ে একটা উপবনে গেলাম আম পেড়ে খেতে। অনেক পরিশ্রম করে আমরা ওখানে পৌঁছলাম আর আমরা আশ্চর্যচকিত হয়ে গেলাম এটা দেখে যে এবার তো আম পাকেইনি। এবার দাদা কি করলেন, একটা আম পাড়লেন আর সেটা চাখলেন, আর উনি নিরাশ হয়ে পড়লেন। উনি বললেন যে এটা তো খুবই টক। তারপর রাধা একটা আম পাড়ল আর সেটা চেখে দেখল, আর রাধা উৎসাহিত হয়ে পড়ল। আমি রাধাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে, তুমি এত উৎসাহিত কেন? তখন রাধা বলল যে এবার এত বেশি টক আম হয়েছে যে এগুলো দিয়ে আমরা আচার বানাবো। তাহলে দাদা ওখান থেকে বেরিয়ে গেলেন নিরাশ হয়ে এবং খালি হাতে। রাধাও ওখান থেকে বেরিয়ে গেল কিন্তু উৎসাহিত হয়ে, আর অনেকগুলো কাঁচা আম সাথে নিয়ে। এর থেকে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি? যে প্রত্যেকটা স্থানে এমন কিছু রয়েছে যেখান থেকে আমরা কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে পারি, যা আমাদেরকে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারে। এই শিক্ষা প্রত্যেক স্থানে আছে। সবকিছু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করছে। যখনই আমাদের জীবনে, আমাদের সম্পর্কে কোনো সমস্যা, কোনো বিপদ আসে, তখন বেশিরভাগ মানুষ সেই বিষয় নিয়ে দুঃখী হয়ে পড়েন। আর কিছু মানুষ এমনও থাকেন যারা শেষ পর্যন্ত তার সমাধান করেন, বিপদকে পরাজিত করেন, সম্পর্কগুলিকে আবার জুড়ে দেন। যদি আপনি সুখের খোঁজ করেন তাহলে আপনি সুখ অবশ্যই পাবেন, প্রসন্নতা অবশ্যই পাবেন। যদি আপনি দুঃখ খোঁজেন তাহলে দুঃখ অবশ্যই পাবেন। এবার আপনি কি খুঁজতে চান, সেই চয়ন আপনারই। আসুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন, রাধা রাধা। মনের রাজা বলা হয়, অত্যন্ত শক্তিশালী হয় সে, তার পরিবারও খুব বড় হয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে সিংহের পরিবারে নিজেদের মধ্যেই কলহ সৃষ্টি হয়, যদি তারা নিজেরাই লড়তে থাকে, তাহলে কি হবে? সিংহকে মেরে তার পরিবারকে মেরে ফেলে শেয়াল বনের রাজা হয়ে উঠবে। এবার এই কথা শুধুই সিংহের উপর প্রযোজ্য নয়, বরং প্রত্যেকটি ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক রাজ্যের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে। পরিবারে যদি মতভেদ বেড়ে যায় তাহলে সেই পরিবার ভেঙে যেতে পারে। ইতিহাস এই বিষয়ের সাক্ষী। যদি সমাজের মানুষ নিজেদের মধ্যেই লড়তে থাকেন তাহলে কেউ রাজা হতে পারেন না, বরং অন্য কেউ সেই কলহের সুযোগ নিয়ে নিজে রাজা হয়ে বসেন। একতার গুরুত্ব বুঝতে শিখুন। ঘুরে ফিরে বিষয়টা এসে দাঁড়াচ্ছে সেই ভালোবাসায়, কারণ ভালোবাসাই হলো সেই যা সকলকে একসাথে বেঁধে তাদের আনন্দে রাখতে পারে। প্রেমের থেকে বেশি শক্তিশালী আর কিছুই নেই। তাই এই প্রেমকে নিজের মনে জাগ্রত করুন, নিজের পরিবারে বর্ষণ করুন, সমাজে বর্ষণ করুন, রাজ্যে বর্ষণ করুন, আর এই ভালোবাসার সাথেই বলুন, রাধা রাধা। কোনো এক বস্ত্রে যদি ছোট্ট একটা ছিদ্র উৎপন্ন হয়, আর যদি আমরা তার দিকে নজর না দিই, তাহলে সময়ের সাথে সমগ্র বস্ত্র ছিঁড়ে যায় আর কোনো কাজে আসে না। যদি কোনো একটা নৌকাতে ছোট্ট একটা ছিদ্র উৎপন্ন হয়, তাহলে সময়ের সাথে পুরো নৌকাই জলে ডুবে যায়। লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় একটা ছোট্ট ভুল আপনি যদি করে ফেলেন, তাহলে আপনাকে তা লক্ষ্যের থেকে দূরে করে দিতে পারে। এমনটা এই সম্পর্কের সাথেও হয়ে থাকে। কোনো একটা ছোট্ট কথা, একটা ছোট্ট মনোমালিন্য যদি সম্পর্কে আসে এবং সেটা না মেটানো হয়, তাহলে সেই সমগ্র সম্পর্কটা, অনেক বড় বড় সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। যদি আপনার সম্পর্কে ছোট্ট একটা ছিদ্র উৎপন্ন হয়, তাহলে প্রেমের সূচ আর স্নেহের সুতো দ্বারা সেলাই করে ফেলুন, যাতে আপনার এই সম্পর্ক অটুট থাকে এবং প্রেম দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। আসুন আমার সাথে ভালোবেসে বলুন, রাধা রাধা। জীবনে সাফল্য এবং অসফলতা আপনার বল, আপনার শক্তির উপরে নির্ভরশীল নয়, আপনার মানসিকতার উপর নির্ভরশীল। যদি কোনো ব্যক্তি দৃঢ় নিশ্চয় করে নেয় তাহলে সে কখনো হারে না। যদি কেউ হার মেনে নেয় তাহলে সে কখনোই জিততে পারে না। শেষ পর্যন্ত কি হয়? এই ভাবনাই
সত্য হয়ে সামনে চলে আসে, আর এই ভাবনাই পরবর্তীকালে ইতিহাস রচনা করে। সেই জন্য আপনি যদি চান আপনার নাম ইতিহাসে থাকুক, তাহলে দৃঢ় হতে শিখুন। ইতিবাচক ভাবনার সাথে, পরিশ্রমের সাথে এগিয়ে চলতে থাকুন। প্রতিস্পর্ধা গ্রহণ করুন আর শুধুই এগিয়ে যেতে থাকুন। সংসারে আপনি যে কোনো উচ্চতাতেই পৌঁছতে পারবেন, কারণ ইচ্ছে শক্তি আর ভালোবাসার চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কিছুই নেই। তাহলে আসুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন, রাধা রাধা। ইচ্ছে বড়ই বিচিত্র জিনিস। এই ইচ্ছে যদি তা পূর্ণ না হয়, তাহলে তা ক্রোধকে জন্ম দেয়। যদি তা পূর্ণ হয়, তাহলে লোভকে জন্ম দেয়। যদি সময়ের মধ্যে পূর্ণ না হয়, তাহলে শোককে জন্ম দেয়। আর যদি সময়ের পূর্বেই পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে অহংকারকে জন্ম দেয়। সকলের ইচ্ছে থাকে, আপনারও অবশ্যই থাকবে, তা অবশ্যই পূরণ করবেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার এই জীবন, এটা কোনোভাবেই আপনার ইচ্ছে পূরণ করার মাধ্যম নয়। এ হলো ধৈর্য সাধনের এক মাধ্যম, নিয়ন্ত্রণ করার এক মাধ্যম। নিয়ন্ত্রণ নিজের কামনার ওপর, নিজের ইচ্ছের ওপর, নিজের আবেগের ওপর। কারণ ইচ্ছে এটা হলো সেই অশ্বের মতো, যা একবার লাগাম ছাড়া হয়ে গেলে, আপনার হাত থেকে যদি এই লাগাম বেরিয়ে যায়, তাহলে তা আপনাকে সোজা বিনাশের পথে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আপনি একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে এটা আপনাকে সাফল্যের শিখরে অবশ্যই পৌঁছে দিতে পারে। তাহলে ইচ্ছেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন আর আমার সাথে ভালোবেসে। ইচ্ছে বড়ই বিচিত্র জিনিস। এই ইচ্ছে যদি তা পূর্ণ না হয়, তাহলে তা ক্রোধকে জন্ম দেয়। যদি তা পূর্ণ হয়, তাহলে লোভকে জন্ম দেয়। যদি সময়ের মধ্যে পূর্ণ না হয়, তাহলে শোককে জন্ম দেয়। আর যদি সময়ের পূর্বেই পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে অহংকারকে জন্ম দেয়। সকলের ইচ্ছে থাকে, আপনারও অবশ্যই থাকবে, তা অবশ্যই পূরণ করবেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার এই জীবন, এটা কোনোভাবেই আপনার ইচ্ছে পূরণ করার মাধ্যম নয়। এ হলো ধৈর্য সাধনের এক মাধ্যম, নিয়ন্ত্রণ করার এক মাধ্যম। নিয়ন্ত্রণ নিজের কামনার ওপর, নিজের ইচ্ছের ওপর, নিজের আবেগের ওপর। কারণ ইচ্ছে এটা হলো সেই অশ্বের মতো, যা একবার লাগাম ছাড়া হয়ে গেলে, আপনার হাত থেকে যদি এই লাগাম বেরিয়ে যায়, তাহলে তা আপনাকে সোজা বিনাশের পথে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আপনি একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে এটা আপনাকে সাফল্যের শিখরে অবশ্যই পৌঁছে দিতে পারে। তাহলে ইচ্ছেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন, রাধা। কখনো অনুভব করে দেখেছেন এই বর্ষা? আকাশ থেকে বর্ষার ফোঁটা ঝরে পড়ে, মিষ্টি ফোঁটা, শীতল ফোঁটা, মনকে পবিত্র করে তোলে, ধরিত্রীর তৃষ্ণা নিবারণ করে, আশপাশটা সবুজে ভরিয়ে তোলে। এবার এই রকম জল আমরা কুয়ো থেকেও পেতে পারি। যদি আমরা ভেবে দেখি যে বর্ষা এবং কুয়োর জলের মধ্যে পার্থক্য কি, তবে পার্থক্য আছে। পার্থক্য হলো ভাগ্য এবং কর্মের। বর্ষা হলো ভাগ্য। প্রকৃতির যখন ইচ্ছে হবে তখন বর্ষা হবে। কিন্তু কুয়ো আমরা এমনি এমনি পাই না, কর্ম এবং পরিশ্রমের দ্বারা একে প্রাপ্ত করতে হয়। এই ধরিত্রীকে খুঁড়তে হয়, অনেক ঘাম ঝরাতে হয়, তবেই আমরা একটা কুয়ো প্রাপ্ত করতে পারি। এবার এই বর্ষা, এটা সারা বছর হয় না, কিন্তু কুয়ো এটা বছরের পর বছর আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে। এবার এর থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? এটাই যে আপনি ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস রাখুন, কিন্তু নিজের কর্মের ওপর আস্থা রাখুন। কারণ কর্ম এবং পরিশ্রম আপনাকে এই সংসারের যে কোনো শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। তাহলে নিরন্তর প্রয়াস করুন, কর্ম করুন, আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন, রাধা রাধা। জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে মানুষকে উচিত পথে চলতে হবে। কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এটা বোঝা যে সেই পথে চলতে চলতে কখন আমাদের দাঁড়াতে হবে আর কখন আমাদের চলতে হবে। এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এবার দেখুন, ছোট্ট একটা কথা রয়েছে, ওকে আটকিও না, যেতে দাও। এই বাক্যের অর্থ কি? অর্থ যে কাউকে আটকিও না, যে এগোতে চাইছে তাকে এগোতে দাও, তার পথে বাধা সৃষ্টি করো না। এবার এই ছোট কথাতে এক অনুচিত স্থানে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। আটকাও, যেতে দিও না। এবার এর অর্থ কি হলো? যে এই ব্যক্তিকে আটকাও, তাকে জীবনে এগোতে দিও না, এর পথে বাধা সৃষ্টি করো। এবার এই ছোট কথাতে অনুচিত স্থানে যদি আমি আটকে যাই, তবে ভাবো কত পার্থক্য হলো। এই শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা শিখুন, আর এই শিক্ষা আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সেইটা বুঝুন। বুঝে যান, শিখে যান জীবনে কখন সামনে এগোতে হবে আর কখন থামতে হবে। মন প্রসন্ন হয়ে বলবে, রাধা। आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है आभूषण। हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। ये आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है, तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु, किंतु एक और बड़ा सत्य है मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है? आपका अपना मन, और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए, इसे संतुलित रखना सीख जाइए। फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु, किंतु एक और बड़ा सत्य है मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है? आपका अपना मन, और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए, इसे संतुलित रखना सीख जाइए। फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा।
आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार एक व्यक्ति अपनी असफलताओं से त्रस्त होकर समय देव की तपस्या के लिए बैठ गया। उसने तपस्या की और समय देव प्रसन्न हुए, मनुष्य के रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। तब मनुष्य ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है जो आप बार बार विजयी होते हो और मैं सदैव हार जाता? क्यों इतना परिश्रम करने के पश्चात भी मुझे असफलता ही मिलती है? तब समय देव ने उत्तर दिया कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, धूप हो या वर्षा, समय का आरंभ हो या प्रलय, मैं नहीं थमता, मैं चलता जाता। और इसीलिए जो थम जाते हैं वो हार जाते हैं, मैं जीत जाता। बस यही सीखना है, जीवन में सदैव चलते रहिए, कभी थमिए मत। हाँ, आप रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, विश्राम करने के लिए, स्वयं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, किंतु थमिए मत। निरंतर कर्म करते जाइए, परिश्रम करते जाइए, तभी ये संसार स्मरण रखेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ईश्वर क्या है? संसार में अधिकतर लोगों के लिए ईश्वर इस संसार के रचयिता है, पालन करता है। किसी के लिए वो ज्ञाता है, तो किसी के लिए आस्था का प्रतीक है, तो किसी के लिए मात्र अंधविश्वास। किंतु क्या ईश्वर एक शरीर है, या भाव है, या मात्र श्रद्धा है? ईश्वर वो जो आपका इष्ट है। इसलिए तो गुरु, माता, पिता, इन्हें भी ईश्वर कहा गया है। जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो हमें एक राह दिखाते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं। उस मार्ग पर चलकर आप शुभ कर्म कर सकते हैं। और जब व्यक्ति अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो इस शुभ मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कई सारे लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सोचते हैं कि कुछ अनुचित नहीं करना चाहिए, ईश्वर देख रहे हैं। उन्हें भय होता है कि कुछ अनुचित कर दिया तो पता नहीं परिणाम क्या हो जाएंगे। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो जानते हैं कि ईश्वर उन्हें देख रहे हैं, तो जो भी शुभ कर्म उन्होंने किया है उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। अब आप डर के ईश्वर पर विश्वास करते हैं या विश्वास से ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ये निर्णय आपका है। किंतु हाँ, यदि आपके मन में ईश्वर के लिए स्थान है, यदि आपके कोई इष्ट है, यदि आप किसी को ईश्वर मानते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये ईश्वर कभी भी आपको अनुचित मार्ग पर नहीं जाने देंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये सागर इतना विशाल है, कभी शांत तो कभी उत्ताल, किंतु इस सागर को इतना महान किसने बनाया? जल। अब इस जल की यात्रा देखिए कितनी कठिन है। ये जल सागर में होता है, सूर्य उसे इतना तपाता है कि ये जल अपना अस्तित्व खोता है, वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है, फिर आकाश में जाता है, फिर अपना अस्तित्व खोता है, मेघ बन जाता है। फिर ये मेघ कहीं किसी पर्वत से जाके टकराते हैं, फिर अस्तित्व ये जल अपना खोता है, फिर ये वर्षा के रूप में बरसने लगता है, या किसी पर्वत की चोटी पर, उसके शिखर पर हिम बन जाता है। फिर ये वर्षा अपनी यात्रा करती है धरा तक। अब धरा पर गिरी ये वर्षा धारा का रूप लेती है और धीरे धीरे बहने लगती है। ये नदी बन जाती है, नदी बन के बहते बहते चट्टानों से टकराती है, पर्वतों से टकराती है, और ये नदी आके सागर में समा जाती है। नदी का ये जल फिर अपना अस्तित्व खोता है, किंतु इस बार वो जल स्वयं सागर बन जाता है। ये सीख है हम सबके लिए कि संसार में जीवन और समय की ये अनंत यात्रा है। इस संसार में जो भी है उसका प्रारंभ पुनः होगा। इसीलिए मृत्यु की या अंत की चिंता त्याग दीजिए और आपको जो प्रारंभ मिला है उसका आनंद उठाइए।
सोचिए कि कैसे आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं जिससे इस संसार और समाज दोनों का भला हो सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। महाभारत में अनेक वीरों ने भाग लिया। ये श्रेष्ठ कुल से आए। कुछ तो बड़े बड़े राज्यों के धीश थे, कुछ देवताओं के पुत्र थे। इन सभी ने भाग ली। ये सभी श्रेष्ठ कुल से, इन सभी को अच्छा परिवेश मिला। किंतु यहीं दूसरी ओर था बार्बरिक, असुर पुत्र बार्बरिक। और यही असुर पुत्र बार्बरिक आज के समय में भगवान के रूप में स्थापित है, पूजा जाता है। कारण क्या है? चयन। बार्बरिक एक दुविधा में था। जैसे हर योद्धा के जीवन में दुविधा आती है, तब वो क्या चयन करता है ये अत्यधिक आवश्यक होता है। बार्बरिक के पास इतनी शक्ति थी कि वो एक ही बाण में सभी का नाश कर सकता था। दुविधा ये थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि किस ओर से युद्ध को लड़ा जाए। उसने चयन ये किया कि वो कहीं से नहीं लड़ेगा, अपितु अपने शीश को दान करेगा। और इसी कृत्य के कारण, इसी चयन के कारण आज के समय में वो खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। स्मरण रखिए, केवल आपका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहां से आते हैं, किस कुल से आते हैं, केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके कर्म, आपके चयन। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। अश्वत्थामा मारा गया, ज्ञात नहीं नर या हाथी। ये एक वाक्य किसने कहा? साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर। वो युधिष्ठिर जिसने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं कहा, किंतु उससे कुछ ऐसे चयन हुए जिस कारण से वो मात्र महाराज युधिष्ठिर बनकर ही रह गए, कभी अभिमन्यु तक पहुंच नहीं पाए। जब द्यूत के लिए न्योता आया था तब उसे अस्वीकार कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर, किया नहीं। अभिमान के लिए उस न्योते को स्वीकार किया, और अभिमान के लिए किया गया यही चयन उन्हें साधारण बना गया। अपने गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए उन्होंने एक असत्य कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और फिर ग्लानि से धीमे स्वर में कहा, ज्ञात नहीं नर यहाँ थे। किंतु अर्ध सत्य हो या छिपाया हुआ सत्य, वह सत्य ही होता है, और हर कर्म का फल मिलकर ही रहता है। इन चयनों के कारण युधिष्ठिर को भी नरक का वास करना पड़ा। तो अपने ये कर्म श्रेष्ठ रखिए, क्योंकि यही निर्धारित करेंगे कि संसार से जाने के पश्चात भी आप जीवित रहेंगे या नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भीष्म एक महान नाम, देवी गंगा के पुत्र, स्वयं बृहस्पति और परशुराम ने जिन्हें शिक्षा दी थी, एक अत्यंत महान योद्धा थे। किंतु ये महान योद्धा, इन्हें इतिहास में आज तक वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो पात्र थे। कारण चयन। राज सिंहासन के सेवा की प्रतिज्ञा उन्होंने ली। अब राज सिंहासन पे जो भी हो उसकी सेवा करना, उसके हर आदेश का पालन करना, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। अब वो व्यक्ति चाहे उचित हो या अनुचित, उचित मार्ग पे चले या अनुचित मार्ग पर चले, सुपात्र हो या कुपात्र, वो उनकी सेवा करते रहे, उनके हर आदेश का पालन करते रहे, अपनी प्रतिज्ञा निभाते रहे। धृतराष्ट्र नेत्रहीन अवश्य थे, किंतु इतने भी नेत्रहीन नहीं थे कि उन्हें प्रजा के अश्रु, धर्म अधर्म दिखाई ही ना दे। वो सब समझ रहे थे। और यहां भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। दुर्योधन अनुचित मार्ग पे था, तब भी उसका साथ देते रहे।
और परिणाम स्वरूप आज तक इतिहास में उन्हें वो स्थान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो पात्र थे। यदि आप कोई प्रतिज्ञा लेते हैं किसी उचित कारण के लिए क्यों ना हो, यदि धीरे धीरे समय के साथ वो प्रतिज्ञा आपको अनुचित मार्ग पर ले जाती है, अधर्म की ओर ले जाती है, पाप की ओर ले जाती है, तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ना आवश्यक है, समय के अनुसार ढलना आवश्यक है। अन्यथा ये प्रतिज्ञा आपसे पाप करवाएगी, कुकर्म करवाएगी और आपके विनाश का कारण बनेगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, स्वयं सूर्य देव के पुत्र, देवी कुंती के प्रथम पुत्र, वो कर्ण जिसका एक बाण मेरे रथ को, उस रथ को जिस पर महाबली अर्जुन विराजमान है, जिसके ध्वज पर स्वयं हनुमान है, उस रथ को उसका एक बाण खिसका देता है। दैव्य कवच कुंडल धारी कर्ण, यही कर्ण युद्ध भूमि में अपने अंत को प्राप्त हुआ। कारण क्या है? शायद दुर्योधन से मित्रता निभाने के लिए उसके अनुचित कर्मों पर भी उसका कभी विरोध नहीं किया, उसका साथ निभाया कर्ण ने। ये चयन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसे रोकने के स्थान पर ठहाके लगाने का चयन, उसका विरोध कभी ना करने का चयन, यही चयन कारण बना कर्ण के अंत का। इस संसार में सभी का उपकार आप स्वीकार कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, किंतु उसके नीचे इतना ना दब जाएं कि अपने अंतर मन के स्वर ही ना सुन पाए। चयन यदि धर्म संगत होगा तो शुभ ही होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। रामायण काल की बात है, सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। समस्त वानर सेना इस कार्य में लग गई थी। बड़े बड़े चट्टान उठा के ये वानर सागर में रख रहे थे। ये कार्य चल रहा है। ऐसे में एक नन्ही सी गिलहरी आती है, छोटे छोटे माटी के कण उठाती है, सागर के पास जाती है, उन पाषाणों के पास रख देती, जितना हो सके उतना उठा के वहां रखती। ये परिश्रम उसका दिन भर चल ही रहा है। अब श्री राम ये कृत्य देखते हैं, उस नन्ही सी गिलहरी को अपने हाथ में उठाते हैं और प्रेम से सहलाते हैं अपने हाथों से। कहा जाता है कि गिलहरी पर जो निशान है, वो 3 निशान श्री राम की 3 उंगलियों के निशान। समस्त शक्ति लगा दीजिए, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जितना आप में सामर्थ्य है, जितनी आपकी प्रतिभा है, संपूर्ण न्योछावर कर दीजिए। कुछ ऐसे कर्म कीजिए। गिलहरी ने यही किया और इसलिए श्री राम के साथ इस कथा में वो भी अमर हो गए। संपूर्ण शक्ति लगाइए, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ कर्म कीजिए। यही श्रेष्ठ मार्ग है कर्म करने का। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य का जन्म कभी उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता। हाँ, उसकी जीवन यात्रा अवश्य सुगम हो सकती, निर्भर करता है कि वो किस घर में जन्म लेता है, उसके परिवार वाले कौन हैं, उसके माता पिता कौन हैं, उसे कैसी शिक्षा वो देते हैं, कैसे संस्कार देते हैं। वो कुपात्र भी बन सकता है, सुपात्र भी बन सकता है, किंतु उसके जाने के पश्चात ये संसार उसे स्मरण रखेगा या नहीं, या स्मरण रखेगा तो किस प्रकार स्मरण रखेगा, ये निर्भर करता है उसके कर्म और उसके चयन पर। जैसे वर्षा की एक बूंद जो मेघों से गिरती है, उसका चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है,
क्योंकि उसके चयन पर निर्धारित होता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। सीप के मुख में गिरे तो मोती बनती है, सर्प के मुख में गिरे तो विष, और किसी पत्ते पर गिरे तो ओस की बू होता है। तो कर्म और चयन जीवन में अत्यंत आवश्यक है, इनका विशेष ध्यान रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कभी कभी हमारे जीवन में एक दुख आता है जिसका कारण होता है संदेह। लोग हम पर संदेह करते हैं, हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर, हमारी वाणी पर, हमारे चरित्र पर। कभी कभी हम सच्चे मन से किसी का भला ही चाहते हैं, उसके लिए कोई अच्छा कर्म करते हैं, और वही व्यक्ति हमारी मित्रता पर, हमारे संबंध पर, हमारी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हम पर संदेह करता है। तब हमें दुख होता है, किंतु होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आप पर संदेह करता है, इससे आपका ही मूल्य बढ़ता है। तब आप कहेंगे, भला ये कैसे संभव है? मुझे बताइए, क्या आपने कभी सुना है कि कोयले की शुद्धता की परख की जा रही है? नहीं सुना, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। शुद्धता की परख केवल स्वर्ण की जाती है, केवल उसी की शुद्धता पर संदेह किया जाता है। इस स्वर्ण को परखा जाता है, और जब ये स्वर्ण उस परख पे खरा उतरता है तो उसका मूल्य कितना अधिक है ये संसार को ज्ञात होता है। उसी प्रकार ये संसार आपको भी परखेगा, और जब आप इस परख पर खरे उतरेंगे तो आपका मूल्य कितना अधिक है इस संसार को ज्ञात होगा। इसलिए जब भी कोई आप पर संदेह करे, दुखी मत होइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं, उचित कर्म कर रहे हैं, सबके लिए आपके मन में सद्भावना है, और हाँ, आप मेरे साथ प्रेम से कह रहे हैं, राधे राधे। हम सभी सूर्य का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये सूर्य हमें ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, कभी कभी इतनी उष्णता बढ़ा देता है, इतना तपता है कि हमें आभास होता है जैसे हमारा ये शरीर जल ही रहा है। तब भी हम विरोध नहीं करते, हम सूर्य को कोसते नहीं, हम सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि संध्या काल में जब सूर्यास्त होगा तब मात्र अंधकार ही शेष रहने वाला है। ठीक इसी की प्रकार होते हैं हमारे माता पिता भी, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमें प्रेम देते हैं। कभी कभी उनके मुख से भी कटु शब्द निकल ही जाते हैं, हमें दुख होता है, किंतु तब हमें ये समझना चाहिए कि ये शब्द जो निकले हैं वो हमारे हित के लिए ही निकले। जैसे सूर्य, वो क्यों तपता है? हमारे हित के लिए, ताकि फसल पक सके, ताकि जल वाष्प बन के मेघ बन सके, वर्षा हो सके, ये संसार निरंतर चल सके। हमारे माता पिता, उनकी कठोरता, उनके कठोर अनुशासन के पीछे उनके इस प्रेम को हमें समझना चाहिए, सम्मान के साथ उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जैसे सूर्यास्त के पश्चात मात्र अंधकार शेष रह जाता है, वैसे ही जब हमारे माता पिता हमसे दूर चले जाते हैं तब हमारे जीवन में भी मात्र अंधकार ही शेष रह जाता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें प्रेम प्रदान करें। ये मन और ये जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। जीवन में 3 बातें हैं, 3 वस्तुएं हैं जिनके वश में आपको कभी नहीं आना है। पहला है धन। इस धन का जब तक आप उपयोग कर रहे हैं, जब तक ये आपके उपयोग में आ रहा है, सब उचित है, ये धन आपके लिए अमृत है। पर जब ये धन आपका उपयोग करने लगे, समझ जाइए कि आपका अंत आरंभ हो चुका है। दूसरी बात, बीता हुआ कल।
जिसे आप कुछ भी कर लीजिए कभी बदल नहीं सकते, और ये सत्य आपको भी ज्ञात है। किंतु इसके वश में फिर भी हम आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो इस संसार में हम कहीं भी जाएं, जितना भी बड़ा सुख भोग लें, उसमें भी हमें कड़वाहट ही अनुभव होगी। तीसरी बात, आपके आसपास के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी भिन्न विचारधाराएं होती हैं, भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। यदि इनके वश में आप आ गए तो कोई कहेगा ये करो ये अच्छा है, कोई कहेगा ये मत करो वो अच्छा है, कोई कहता है ये दोनों मत करो कुछ और करो। इन बातों में आप कुछ इस प्रकार चकरा जाओगे कि आप लक्ष्यहीन हो जाओगे। तो इन 3 बातों से सावधान रहिएगा। यदि किसी पर वश पाना है तो आपको वश पाना है आपके आज पर, आपके वर्तमान पर। यह अति आवश्यक है। ये सोचिए कि इस समय का सदुपयोग मैं कैसे करूं, इस समय पर शासन में कैसे करूं, वो कर्म में कैसे करूं जिससे भविष्य में मुझे पछतावा ना हो, अपितु इस संसार को मुझ पर कर्म हो। वो कर्म कीजिए, और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप सत्य में स्वयं को भाग्यशाली बना देंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य जब इस संसार में प्रवेश करता है, अर्थात जन्म लेता है, तो निश्चिंत रहता है, उन्मुक्त रहता है। किंतु जैसे ही उसमें समझ आती है, वो चिंता करना प्रारंभ करता है। चिंता भविष्य की, चिंता उन सभी विषयों में करता है जो उसके वश में नहीं है। बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थी बसाता है, फिर चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि ये मेरा परिवार जिसका मैं ध्यान रख रहा हूं, कल मैं जब चला जाऊंगा इस संसार से, तब मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? अंततः ये परिवार तो है मेरा ही उत्तरदायित्व। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। इस संसार में आने से पहले क्या आपने ये प्रश्न पूछा था, क्या ये सोचा था कि मेरे बिना ये संसार कैसे चल रहा है? नहीं सोचा। तो आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आप जब इस संसार से चले जाओगे तब क्या होगा। आप जब नहीं थे तब भी ये संसार चला, आप जब इस संसार से चले जाएंगे तब भी ये संसार चलेगा। यदि किसी बात से अंतर पड़ेगा तो वो है आपके आज के वर्तमान के कर्म। आज आप क्या करते हैं, किसका भला करते हैं, किसे प्रेरणा देते हैं, किसकी सहायता करते हैं, क्या आप उदाहरण बनते हैं। आप जो छवि इस संसार में छोड़कर जाएंगे वही संसार स्मरण रखेगा। तो बस सत्कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ओस की बूंद पत्ते पर गिरती है, उसके संपर्क में रहती है, पत्ता उसे सूख नहीं पाता और अंततः वो फिसल कर गिर जाती है। दूसरी ओर है मेघ और पपीहा, इनमें बड़ी दूरी होती। मेघ आकाश में तो पपीहा धरा पर। किंतु जब इन मेघों से वर्षा होती है, ये पपीहा वहीं जल पीता है, अन्यथा प्यासा रह जाता है। अब एक और है ओस की बूंद और पत्ते का ये संबंध, जिसमें अत्यंत निकट है, संपर्क में। दूसरी ओर है मेघ और पपीहे का संबंध, जिसमें योजनों की दूरी है, तब भी संबंध तो है नहीं। इसका तात्पर्य सरल है, ये निकटता, ये दूरी, ये आपके संबंध को परिभाषित नहीं कर सकता। ये निकटता, ये दूरी, ये तो मात्र मन में। कभी आपने अनुभव किया? आप किसी से योजनों दूर हो, बहुत दूर हो, तब भी उस व्यक्ति के साथ अपनापन अनुभव होता है। वही आप किसी के साथ दिन प्रतिदिन व्यतीत करते हो, जीवन व्यतीत करते हो, सबसे अधिक समय उसके साथ व्यतीत करते हो, और उसके साथ पराया सा अनुभव होता है। ये संकेत है मन की दूरी का। तो मन की ये दूरियां मिटा दें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कब जन्म लेता है, कब उड़ना सीख जाता है, कब घोंसला बना लेता है, कब अपने अंत को पाता है, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। किंतु पक्षी एक बात अवश्य जानता है कि संसार में वो कुछ भी करे, इस संसार को उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करें?
कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कार्य करते हुए यदि संसार ने मुझे देख लिया तो पता नहीं संसार क्या सोचेगा, पता नहीं मेरी छवि कैसी बन जाएगी, पता नहीं क्या होगा, आदि इत्यादि इन विचारों में वो खो जाता है। कुछ इस प्रकार खो जाता है कि इस वर्तमान के कर्म का, इस जीवन की यात्रा का, उस समय का आनंद उठाना वो भूल जाता है। अब देखिए पक्षी क्या करता है, उसका कर्म है गाना चहकना। वो पक्षी गीत गाता है, कोई उस गीत को सुने या ना सुने, कोई सुन भी रहा है या नहीं, उस बात से उस पक्षी को कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पक्षी तो अपना कर्म करता जाता है। और कदाचित इसीलिए आप किसी पक्षी को कभी रोता हुआ नहीं पाओगे। बस इसी प्रकार आपको स्वयं को बनाना है। पहले स्वयं से पूछिए, ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो उचित है? और यदि आपको लगता है वो उचित है तो वही कर्म कीजिए, बिना ये सोचे कि संसार क्या सोचेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जैसे मेरे लिए यशोदा मैया है, जैसे मेरे लिए माता देवकी है, वैसे ही मेरे लिए गौ माता है। अब सोचने वाली बात यह है कि संसार में असंख्य प्राणी हैं, गैया को ही मैया का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ? तो इसके भी अनेक कारण हैं। ये गैया, हमारी गौ माता, ये अत्यंत शांत है, शांति प्रिय, कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकती। गौ माता जो दूध अपने बछड़े को देती है वही हमें देती है, जिसे पीकर हम शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसे हमें माखन, घी, खीर, ये सभी स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। गौ माता का गोबर चूल्हा जलाने में हमारी सहायता करता है, जिससे कम से कम लकड़ियों का उपयोग होता है, अधिक से अधिक वन सुरक्षित रहते हैं। गौ माता का गोमूत्र ये भी हमारे लिए लाभदायक है, इससे हम अनेक रोगों से मुक्त रह पाते हैं। गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है तब यही बछड़ा बड़ा होके हमारे खेत जोतता है। इसलिए गैया को भी जीवन में मैया का स्थान दीजिए, जितनी हो सके उसकी सेवा कीजिए, प्रेम से उसका पालन कीजिए। यह मन अपने आप प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।